Okay. So as all of you know that okay, we have started this particular topic in the last lecture, that was CRC. Okay. It was cyclic redundancy check. आई थिंक मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट भी किया हूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है. ओके डन. So we started this particular topic, that is cyclic redundancy check. Okay. And just as a revision part, let me revise you that okay, we have seen different types of uh, we can say coding scheme. The one of the coding scheme was the parity check code, in which we have to add one extra bit. We always add one extra bit at the sender side and remove those extra bit at the receiver side. That's we can say the basic fundamental in the concept of redundancy. Okay. So redundancy यही है basically कि we add some extra bit, but in case of parity check code we add only one extra bit. Okay. So that is different in the different types of coding. As we have seen that in the parity check code we add only one extra bit, okay, in order to make it as a code word. You can see this one. This is the data word, which is of 4 bit. Now it has been converted into the code word. Okay. So the code word is now 5 bit. Okay. The code word is now of 5 bits. Okay. तो यहाँ पर खाली एक है, बस एक बिट ऐड किया हम लोगों ने पैरिटी चेक कोड में. बट इन केस ऑफ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यू कैन सी हाउ मेनी बिट्स वी हैव एडेड. यहाँ पर देखो, आपका आपने जो लास्ट टाइम एनकोडर देखा था, इसमें हाउ मेनी बिट्स वी हैव एडेड 3 नंबर ऑफ बिट्स. ओके. तो it is fully depend on the type of coding scheme or the type of we can say the yes, the coding scheme only, that how many bits we have to add as a redundant bit. Okay. How many bits we have to add as a redundant bit so that it can be removed at the receiver side. Okay. So that is fully depend on the scheme which we are using. Okay. So in the last session we have started with the CRC. In the CRC we have seen this encoder part. We have seen this encoder part only, and today we are going to focus on the receiver part, that is the decoder part. Okay. Just एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं so that we can understand the decoder part also. So if you look at the diagram, then you can easily see we at the center side we have a data word which is of 4 bit, okay. So it was shown as A0, A1, A2 and A3. Okay. It was clear to you. After that we have appended three number of zeros. Why three number of zeros? Because we have a divisor of 4 bits, so 4 minus 1 becomes 3, so we have to append three number of zeros into the existing data word, so that we can give it so that the collectively that particular data can be given to the generator, and generator will give us the redundant bit. Okay. So that was the scheme. एंड उसके बाद में फिर जो जो आपके redundant bits आते हैं, तो those redundant bits will be added or appended to your existing data word. Okay. तो यहाँ पर आपका बनता है code word. Okay. That code word will be sent to the receiver. Now as I told you that we are having two cases. The first case is that while the transmission of this particular code word, one of the bit has been changed. हो सकता है R0, R1, R2, A0, A1, A2, A3, इन कोई भी बिट में से कोई एक बिट चेंज हो गया है या फिर मल्टीपल बिट चेंज हो गए हैं. ठीक है. मतलब एक भी हुआ तो एरर ही है और ज्यादा भी हुए तो एरर ही है. ओके. तो इमेजिन करो कि ये जो आपका ट्रांसमिट हो रहा था सेंटर से रिसीवर के बीच में, आपका डेटा जा रहा था आफ्टर अपेंडिंग दिस रिडंडेंट बिट, तो उसमें एक आध बिट आपका चेंज हो गया है. ठीक है. मतलब क्या हुआ? एरर आ गया है. मतलब क्या हुआ? नॉइज ऐड हो गया है. ठीक है. तो जब नॉइज ऐड हो गया है, एरर आ गया है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा. ठीक है. सो विल सी वन केस इन विच द नॉइज और द कोड इज करप्टेड. we'll see one case in which the code is corrupted, and we'll see another case in which the code is not corrupted. Okay. So we'll see both the cases. आई होप पहले आपको सेंटर पार्ट यानी एनकोडर पार्ट तक का समझ में आया होगा. आई थिंक अगर आप ये देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो दिस वाज द ओरिजिनल डेटा बिट. जस्ट फोकस ऑन माय कर्सर. ओके. So it was the original data words. Okay. And we have appended three number of zeros. Okay. So the it whole becomes the dividend. Okay. ये हमारा पूरा बन गया डिविडेंड. उसके बाद में वी हैव डिवाइजर. ओके. which was shared between the sender and the receiver. Okay. So 1011 it was the divisor.
then we start dividing this particular dividend with this divisor 1011 ones are 1011, and after doing the XOR operation we got 010. ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ जो लास्ट टाइम हम लोगों ने खुद से किए थे इसको, तो उसमें शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम लोग और रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा डिकोडर पार्ट समझ में आए अच्छे से। वो बहुत सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल हुआ है, सेम चीज करना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर डूइंग द एक्सओर ऑपरेशन वी गॉट 010। ठीक है, सो वी गॉट 0 डाउन। ठीक है, तो इट बिकम 0100। ठीक है, 0100, तो आपको पता है लेफ्ट मोस्ट बिट 0, यूज 0000 एज अ डिवाइसर। ठीक है, तो फिर 1011 जीरोज आर ऑल जीरो, आपको तो पता ही है कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1011 जीरोज 0000, बिकॉज 1011 विल बी मल्टीप्लाइड विद जीरो, तो क्या होगा, सारे के सारे हम लोग को जीरो मिलेगी, तो इट बिकम जीरो ऑल। तो जीरो एक्स और जीरो, जीरो देन जीरो, वन प्लस जीरो, मैं प्लस बोलता हूँ बट दिस इज नॉट प्लस, दिस इज एक्सओर ऑपरेशन। ठीक है, तो 101, तो सिंपल बोलने का जो तरीका उसका बस ऐसी है, 000000101। ओके, देन 000 होता है, बट ये जीरो को हम लोग को हटा देना है, जो आपका लेफ्ट वुड बिट हटा है, बिकॉज वी हैव टू टेक डाउन द अनदर बिट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को मिला 100 मिला, फिर हम लोग ने जीरो को नीचे ले लिए, we got this particular zero down, okay, and it becomes the 4 bit now dividend, तो 1000 हमारे पास में आ गया। देन वी गॉट 1011 ones are 1011। ठीक है, तो ये आफ्टर डूइंग द एक्सओर ऑपरेशन अगेन वी गॉट द जीरो एज अ लेफ्ट मोस्ट बिट, ये सॉरी यहाँ पर हमको मिला जीरो, तो हम लोग ने हटा दिए, 011 मिला, वी गॉट दिस, वी पुल डाउन दिस पर्टिकुलर जीरो, सो 0110 मिल गया हम लोग को, तो अगेन लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है, तो 1011 zeros are 0000, and after doing the XOR operation we got 110, okay, as a remainder। okay, तो आई थिंक ये वाला आपको समझ में आया था। ठीक है, by considering that now we can proceed। okay, now what we have done, it was the existing and the original data word। okay, just focus over here, it was the original data word, we kept it over here। okay, and the remainder part, whatever remainder we have got, so we'll put that remainder as a, these are the redundant bits, these remainder will act as a redundant bits। okay, तो यहाँ पर इसको हम लोग एज ए redundant bits, ऐसा R0 R1 R2 था ना, so we are adding that particular remainder over here, so data word plus remainder becomes your code word। okay, again I'm repeating, data word plus remainder, ये आपका data word actual वाला, और जो हम लोग ये रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर, तो दोनों को मिला के आपका बन गया कोड। ठीक है, अब आपका इस कोड वर्ड जो भी आपकी लेयर से होके जाएगा लास्ट में फिजिकल लेयर तक जाएगा, और फिजिकल लेयर क्या कर देगा, उसको ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नाउ योर सेंडर हैज ऑलरेडी सेंड दैट पर्टिकुलर कोड वर्ड टू द रिसीवर नाउ। ठीक है, नाउ इट विल ट्रैवल इनटू द एयर, और इट विल ट्रैवल वाया सम वायर्ड लाइन। ठीक है, जो भी वायर्ड कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है, जो भी है, वी आर नॉट टू वरी अबाउट इट। बहरहाल आपका ये जो कोडवर्ड है ये ट्रैवल करते 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 पहुंच गया आपके रिसीवर के पास। ठीक है, अब रिसीवर भाई साहब ने इसको रिसीव किया, अब रिसीवर भाई साहब ने रिसीव तो कर लिए, लेकिन हो सकता है विल सी द केस वन। ओके, विल सी द केस वन वेयर द कोड वर्ड इज अनकरप्टेड। ठीक है, मतलब चलो जहां जहां से आया कहीं से कोई नॉइज ऐड नहीं हुआ, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई उसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड नहीं हुआ, कोई बिट उसमें चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कोई बिट चेंज नहीं हुआ है, तो द कोड वर्ड इज नाउ अनकरप्टेड। ओके, तो विल कंसिडर दिस केस फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द कोड वर्ड वी हैव रिसीव 1001। अच्छा, एक बार चेक कर लो कि वही तो नहीं कोड वर्ड है, वरना आप लोग बोलेंगे सर कैसे। 1001 110, 1001 110। ठीक है, याद रखो, 1001 110। ओके, सो दिस इज द कोड विच इज अनकरप्टेड, एक भी बिट इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज इसकी किस्मत अच्छी थी, इसके लिए आपको डेटा जो मिला है, कोडवर्ड जो मिला है एट द रिसीवर। नाउ वी आर एट द रिसीवर साइड। ओके, रिमेंबर, we are at the receiver side, okay, and we have got the code word।
नाउ वी नीड टू चेक। अच्छा भाई चेक भी तो करना है ना अभी। अब चेक करने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? अगेन वही प्रोसीजर है, भट्टी में उठा के डालो उसको। ठीक है, सो आर भट्टी इज लाइक दिस इज द डिकोडर पार्ट, this is the decoder part, and we have got the same divisor. Okay, this is the same divisor we have considered for the encoding part. Okay, this is the divisor 1011. ठीक है, so this same divisor will be used over here for dividing this one. So we have got this divisor as a 1011. Okay, and this code word will be put as a dividend. ठीक है, तो 1001 110 1001 110 मिल गया आपका कोड वर्ड। यहाँ पर रख दो, ये आपका डिवाइजर है। नाउ स्टार्ट द सेम प्रोसीजर जो कि हम लोगों ने एनकोडिंग में किया था। ठीक है, तो 1011 10। अब यहाँ पर सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरे पास पेन टेबलेट भी नहीं है और टाइम भी नहीं इतना है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं इसको हम लोग अपना अलग से करते थे ताकि चीज़ थोड़ी सी और क्लियर होती थी। अभी यहाँ देख के समझ लो। ठीक है, तो 1011 आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये 1 है। ठीक है, अगर आप ये 4 बिट कंसिडर करते हो, चलो मैं थोड़ा सा पेन से बता दूं कम से कम, अगर आप ये 4 बिट कंसिडर करते हो तो यू हैव 4 बिट्स। ओके, तो 1011 1 जार, इसको मैंने ले लिया, 1011 1 जार 1011। ठीक है, तो 1 एक्स और 1 क्या हो गया? 0 हो गया, 0 1 क्या हो गया? 1 हो गया, 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये 0 को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू पुल डाउन द नेक्स्ट बिट। ओके, राइट, जैसे हम लोग दूसरे इसमें करते हैं। तो ये 1 को नीचे ले लिया। नाउ वी हैव लेफ्ट मोस्ट बिट। अच्छा, ये हमारा 4 बिट का। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग दिस 4 बिट। ओके, so we have got the leftmost bit as 0. Okay, and you know that के if the leftmost bit is 0, if the dividend का leftmost bit is 0, then your quotient जो ऊपर आएगा आपका वो 0 आएगा। ठीक है, तो 1011 zeros are all zeros. Okay, तो 101 000 101 000। ठीक है, अगेन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस 3 बिट। अगेन हम लोग ने पुल डाउन किया हमारे एक एक्स्ट्रा बिट को जो कि हम लोगों ने अपेंड किया था। सो दिस गॉट 1011। ठीक है, तो 1011 1011 1 जार 1011 फॉर्चुनेटली एकदम सेम आया है। ठीक है, तो सेम आया भाई साहब, तो क्या मतलब हुआ आपका? 1x और 1 0, 1x और 1 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, तो ये 0 को आप लोग तो कंसिडर नहीं करते हो। ठीक है, मैंने हटा दिया। नाउ यू हैव गॉट दिस 3 बिट मिल गए, एक लास्ट वाला बिट को भी चलो नीचे उतार लो। ठीक है, you have got pull down this particular zero over here, we have got 0 0 0 0। ठीक है, तो 1 0 as this leftmost bit is 0 1 0 1 1 zeros are all 0। तो 0 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 को उठा के साइड में फेंक दो। you have got all zero। okay, एंड दिस पर्टिकुलर रिमाइंडर जो आप लोग का यहाँ पर मतलब कि जिसको बोलेंगे डिकोडिंग साइड में जो मिलता है हम लोग को एज अ रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड द सिंड्रोम। ओके, दैट इज कॉल्ड द सिंड्रोम। एंड इफ इट इज 0, अच्छा यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर कभी आपका यहाँ पर आपको ऑल 0 मिलता है, अगर ये 0 मिलता है, देन ओनली योर डेटा वर्ड विल बी एक्सेप्टेड। दैट इज द स्कीम। ओके, अगर आपको सिंड्रोम मतलब रिमाइंडर, अगर आपको 0 ऑल 0 मिलता है, अगर आपको ये सिंड्रोम ऑल 0 मिलता है, then only your data word will be accepted, otherwise it is rejected। okay, अच्छा ये कैसे होगा? विल सी इन द सेकंड केस। चलो आते हैं सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, चलो एक्चुअल आपका जो था वो था 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ एक बिट आपका चेंज हो गया। रास्ते में जा रहे थे, बीच में किसी ने तो नॉइज ऐड हो गई और आपका एक बिट चेंज हो गया। ठीक है, ड्यू टू द नॉइज आपका एक बिट क्या हो गया? करप्टेड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन इन द सेंस के हमारे पास में तो 0 है तो 1 है, मतलब या तो 1 का 0 होगा या तो 0 का 1 होगा, ये बस ये चेंजेस हो सकते हैं। तो एक हमारा जो था वो चेंज हो गया, 1 0 0 1 1 1 0। इट वाज द ओरिजिनल कोड वर्ड, यू रिमेंबर, इट वाज द ओरिजिनल कोड वर्ड। ओके, बट ये वाला जो बिट था आपका वो चेंज हो गया, ये 1 का 0 हो गया। सो यू कैन सी यहाँ पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है, so this particular bit has been changed। अच्छा,
अब ये बिट आपका चेंज हुआ है। अच्छा पहले मुझे यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन प्लीज लेट मी नो whether you people are understanding or not। जब भी मैं आपको सेकंड केस बताऊंगा। 10-19 हो गए, फटाफट जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है? ओके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग वापस से गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, खाली डिवाइड करना है काम, ठीक है? डायग्राम याद रखना है, डिवाइड कैसे करना है याद में रखना है बस। ओके। और अगर आपने यही एग्जांपल अगर कभी इसका उसका डेटा वर्ड याद कर लिया और डिवाइजर, डेटा वर्ड और डिवाइजर खाली दिमाग में रखो, आराम से आपके 10 मार्क्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही 10 मार्क्स तक के आ जाता है, ठीक है? तो इसको पूरा सॉल्व करके इसका सिंड्रोम बताना होता है वगैरह वगैरह, दोनों केसेस बताना होता है, एनकोडिंग पार्ट, डिकोडिंग पार्ट, डायग्राम एंड देन उसका डिवाइडिंग, ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपकी चांदी है, आराम से क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? Okay, now we have got the second case in which the code word is corrupted. Okay, so you can just imagine that कि this particular bit has been changed. तो ये जो आपका 1 था ये 0 हो गया, ठीक है? मतलब कोड वर्ड चेंज हो चुका है, ठीक है? लेकिन हमारे किसी को पता नहीं है, हमारे रिसीवर साइड पे अभी तक किसी को पता नहीं चला है, ठीक है? अब क्यों नहीं पता चला है वो देखते हैं हम लोग। तो पता नहीं चल पाया, अब वो उसको पता करना है, बिकॉज you know whenever we will receive, whenever the receiver will receive any code word or any word or any signal from the sender, then it has to cross verify। भाई क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि नहीं हम लोग उसको, कि भाई बस आया ले लिया और प्रोसेस करके आगे भेज दिए? मैंने आपको बोला हूँ, bugs always follow the bug। okay, so at each and every checkpoint we have to make sure that your data is uncorrupted। we have to make sure, not us, but the system has to make sure that your data is uncorrupted, your data is not containing any kind of error, any kind of noise, okay, any kind of change भी होना नहीं चाहिए, ठीक है? डेटा आपका क्या होना चाहिए? अनकरप्टेड डेटा जाना चाहिए, ठीक है? तो भाई साहब हमारे रिसीवर ने जैसे लिया, ठीक है भाई आपका डेटा है, अभी ऊपर से तो लग नहीं रहा है कि डेटा चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है? सो योर रिसीवर हैज गॉट दैट पर्टिकुलर कोड वर्ड। ओके, अंदर अंदर गड़बड़ है लेकिन ऊपर से पता नहीं चल रही है। हम लोगों ने इसको वापस से मशीन में डाला, ठीक है? हमारी मशीन थी, सो इन दैट पर्टिकुलर मशीन वी पुट दिस पर्टिकुलर कोड वर्ड, ओके, एज अ डिविडेंड। ओके, 1000, देखो ये वाला बिट है जो आपका चेंज हुआ है, ठीक है? बट हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो ये आपका 0, ये आपका 110, ठीक है? तो एज इट इज हम लोग ने यहाँ कोड वर्ड लिख दिया है। देन वी हैव गॉट द सेम डिवाइजर, ओके, 1011। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट मोस्ट बिट आपका 1 है तो ठीक है, 1011 1 जार 1011 अगेन आफ्टर डूइंग द एक्सओर ऑपरेशन 011 011 000 एंड 110, तो ये 0 आपका चला गया, ठीक है? उसके बाद में आपको मिला ये 011, ठीक है? मेरा कर्सर थोड़ा इधर उधर जा रहा है बट थोड़ा सा कंसीडर करो। ये हम लोगों ने जो 1 था इसको नीचे ले लिया, ठीक है? अब ये 1 को नीचे लेने के बाद में वी हैव गॉट दिस 4 बिट 0111, ठीक है? The leftmost bit is 0, so we can make a quotient as 0. 1011 zeros are all 0. After doing the XOR operation, we got 111. We got 111। यहाँ का 0 जो था आपका भाई साहब उसको हम लोगों ने हटा दिए। This we have got this 111। Again we got this particular 1 down over here, so we got all 1 1011। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? नाउ 1011 1 आर 1011, तो 1011 आया, तो 1 XOR 1 0, 1 XOR 1 0, 101 110, ठीक है? तो भाई साहब ये वाला 0 को हम लोग ने पाताल पहुंचा दिए। अब ये बन गया आपका 100। वी गॉट दिस 0 डाउन, ठीक है? लेफ्ट मोस्ट बिट इज 1, तो 1011 1 आर 1011 आफ्टर डूइंग द XOR ऑपरेशन 011 011 011 000 और 110 व 110 को हम लोगों ने उठा के पहुंचा दिए। अब ये बच गया आपका सिंड्रोम 011। जब भी एट द रिसीवर साइड अगर आपका रिमाइंडर नॉन जीरो बचता है, कभी भी रिमेंबर, whenever you will receive any non-zero remainder at the receiver side, it means that your data word is corrupted, मतलब whatever your code word which we have received is corrupted and your data word cannot be accepted। okay, your data word has to be discarded। okay, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ द एरर इज बीइंग डिटेक्टेड, ठीक है?
एरर को यहाँ पे डिटेक्ट कैसे कर रहा है, इसके पास में एरर करेक्शन का कुछ नहीं है, ठीक है। सीआरसी हमारा एरर को करेक्ट नहीं कर सकता है, बस एरर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। we have got another mechanism like Hamming code and all that, from which you can easily identify the you can easily identify the errors, you can easily detect the errors and you can correct the errors, कहाँ कौन से bit पे error है, so you can find all that, okay। but यहाँ पर हमारा जो CRC है, CRC is used along with your data many time, you have seen के data के साथ में CRC भेजते हैं, ठीक है। तो सीआरसी मतलब वही है, कोडवर्ड भेजते हैं, फिर वो कोडवर्ड वहां पे जाता है रिसीवर साइड पे, एंड दैट कोडवर्ड इज चेक्ड अगेन, ओके। अगर कभी वो आपको सिंड्रोम 0 नहीं मिला, नॉन 0 आया, यहाँ हमारे केस में 011 मिला था, ठीक है। तो 011 इज अ नॉन 0 सिंड्रोम, मतलब के डेटा आपका जो है, जो आया है सेंडर की तरफ से, दैट इज corrupted data, okay। it may contain error and may be at a single bit or at multiple bits, okay। there may be an error at single bit or at the multiple bits, okay। तो एक जगह पर भी हो सकता है, मल्टीपल जगह पे हो सकता है, वो हम लोग को नहीं करना, एरर है तो है, ठीक है। तो अब वो एक जगह पर हो कि 50 जगह पर हो, वी आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट इट, बट दिस इज एरर एंड दिस डेटा कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ओके। so in this way we can make sure that your data will be, your data whatever we are receiving and we are forwarding it to the upper layer at the receiver side, so that is uncorrupted data, okay। so this is how it is, make sure that your data whatever receiving and we are sending it to the upper layer is not corrupted, okay, it is uncorrupted, okay। so this is the way from which we can check it out and we can make sure it, okay। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज द टेबल as I shown you in the earlier lecture, this is a combination of 7,4, we can have combination of any other code also, like हो सकता है हमारे पास में जो डेटा वर्ड है वो 5 बिट्स का है because you may have data word of any size, okay। यहाँ पर we have considered of only 4 size, okay। but your यहाँ पर जो data word 4 bit का consider की है, तो we have got the code word of 7 bit, okay। in the same way हो सकता है कि अगर आपने data word को 6 bit का लिए तो आपको जो code word मिले वो 9 और 10 bits का मिले। so this is ये हमारे पर डिपेंड नहीं है, बल्कि कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन पे रहता है, तो हम लोग उसमें उतना डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें अगर जाएंगे तो फिर और उसमें डीप में चले गए। So right now you can just consider the combination of 7,4 in which we are having data word of 4 bits and code word of 7 bits, okay। so this is the simple table for that, okay। I have written one statement which I have taken from the reference book, is that how the divisor is taken is quite a long story, okay, because I have seen that story in the reference book। डिवाइजर लेना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा डायग्राम है, तो वो पूरा करने के बाद में यू हैव टू टेक द डिवाइजर, तो वो एकदम सर दर्द वाला काम है। सो वी आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट, we don't care, important thing is that it has to be shared between the sender and receiver, so that the encoding and the decoding part will be done very precisely, okay। so this is all about the CRC, okay। we have seen the encoding part, also we have seen the decoding part, okay। so this was the encoding part we have seen in the earlier lecture, and after that today we have seen the decoding part, in which we have seen both the cases where the data, that is the code word, was corrupted, you can see it on the right hand side, and the date, and where the data, that is code word, is uncorrupted, we have shown it in the left hand side, okay। I hope this is clear, this is important topic, and this अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है then it comes for 10 marks, okay। along with क्या क्या पूछेगा मैं बताता हूँ आप लोग को। you need to start with the introduction part, that is cyclic code, and it has been generated from the cyclic code, okay। तो cyclic code से generate हुआ है, इसकी property क्या है, then CRC क्या है, और CRC का diagram क्या है, then you need to explain some of the part of this particular CRC, you need to talk about the generator, checker and the divisor, okay। what should be the decision logic, as you know। देखो अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ये सिंड्रोम चेक करने के बाद में क्या करेंगे, सिंड्रोम S0 S1 S2 से इसको मतलब डिनोट किया है, ठीक है। इफ यू हैव गॉट द नॉन जीरो, अगर हमको नॉन जीरो मिलता है मतलब तो क्या करेंगे हम लोग अपना डिसीजन क्या लेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है भाई, तुझे हम लोग को तो नहीं चाहिए बिकॉज यू आर नॉन जीरो, ठीक है। अगर जीरो मिलता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे, ओनली डेटा वर्ड विल बी एक्सेप्टेड, बाकी के बिट्स विल बी फेंक देंगे, ठीक है।
तो दिस इज एट द रिसीवर नाउ। अब जो है आप लोग को ये डायग्राम एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। पहले ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा, लेकिन until and unless you go through the complete process of the decoding part at the receiver side, तो you cannot understand this diagram, ठीक है। सो अगेन मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। सो इट वाज द कोड वर्ड जो कि आप लोगों ने रिसीव किया एट द रिसीवर साइड। तो ये कोड वर्ड हम लोगों ने चेकर को दिए। सो ये कोड वर्ड आपके मिले, जाने के बाद में फिर आपने चेक किया, अगर आपको ये सिंड्रोम 0 मिलता है, अगर 0 मिलता है तो आपका डिसीजन लॉजिक क्या करेगा भाई, चलो ठीक है आने दो, एक्सेप्टेड। अगर नॉन 0 मिलता है तो डिस्कार्डेड। दैट इज सिंपल लॉजिक हो गई है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर आप जैसे भी यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड में लिखा हूँ, that is the encoder part, we can say encoding part at the center side, and how the code word is being generated। तो यहाँ पर मैंने बताया हूँ। उसके बाद में डिकोडर पार्ट है, डिकोडर पार्ट के दोनों केसेस है। बस इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताना है। आप अगर कभी इसके अंदर कुछ एक दो केसेस बता दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2-3 केसेस अगर आप लोग बता दे कि ये आपका डेटा वर्ड होगा, ये कोड वर्ड, तो एक्सेप्टेबल है और मतलब अप्रिशिएबल है। अगर नहीं भी बताए तो कोई इशू नहीं, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए लिखा था, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द CRC वी हैव डन टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द चेकसम, ठीक है। चेकसम हम लोग को देखेंगे सिलेबस में कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे हमारे टॉपिक्स है जो कि अभी हटा दिए हैं। तो विल लर्न अबाउट द चेकसम। द डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हेमिंग कोड हम लोग को है, लेकिन आप मतलब है नहीं, लेकिन हेमिंग कोड आप लोगों ने किया है अपने लास्ट टाइम में किया है, तो दैट इज़ ओके। टाइम मिलेगा तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में चंक इंटरलिविंग वगैरह आपको कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, अगर देख लेते हैं, अगर कभी कहीं स्कोप मिला तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है वो भी, इट इज़ वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट द एरर्स, ओके। तो इससे हम लोग एरर बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में वी हैव टॉपिक दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो विल लर्न अबाउट दैट आल्सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके। तो जहाँ जहाँ सिलेबस में हम लोग को टॉपिक्स है वही हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज इफ विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स जो कि लास्ट सिलेबस में था, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कवर द सिलेबस, ओके। सो यहाँ तक के लिए बस काफ़ी है आज के लिए। 10:31 हो गए। आई एक्चुअली हैव टू अटेंड अनदर मीटिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर। So let me stop the recording. I've got that particular one. एक सेकंड करें।